everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. So today I was just discussing something interesting with my students. Why have they chosen to do CLAT? What are their future goals? And so I thought, why not discuss the same with my YouTube audience? So everybody who's watching this, why have you thought that you want to become a lawyer? Or are you still skeptical whether you should become a lawyer or you should not become a lawyer, or not even lawyer? Why should you study law? What is the zeal that is making you study law? मतलब doctors want to save people's lives. So what are your goals? आपको ऐसा क्या है? So comment down below for that, because that's the interaction that we can do. For if you guys are skeptical कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, lawyer हमारे घर में कोई भी नहीं है, किसी ने law नहीं पढ़ा है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, this video is for you. So everybody who is along with me, tag along. हम देखते हैं और देखते हैं कि lawyer क्यों बनना चाहिए, law क्यों पढ़ना चाहिए. Also there's a misconception in the minds of people that the वकील बनना है क्योंकि मुझे झूठ बोलना पसंद है. So that's the most stupid thing that could ever be said for becoming a lawyer. ऐसा नहीं होता है. There are two ways of the truth, right? हर किसी के दो पहलू होते हैं, तो उन दोनों को समझना ज़रूरी होता है. जैसे हम ये देखें कि आपने ये बोला मुझे झूठ बोलना पसंद है, बट अजमल कसाब, डू वी रिमेंबर अजमल कसाब? हमें पता है दैट ही वॉज प्रूवन टू बी अ टेररिस्ट. हमने उसको न्यूज़ में देखा है, वी हर्ड वॉइसेस, हमने लोगों के विटनेसेस लिए हैं दैट द टॉर्चर वॉज एक्चुअली डन बाय हिम. Yet we gave him a lawyer. He also was given an advice कि आप हमारे प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं मर्सी पिटिशन कि आप मेरी फांसी रुकवा दीजिए. हमने उसे ये सब अधिकार दिए. क्यों दिए? क्योंकि हम एक सिविलाइज नेशन है. हम ये मानते हैं कि दोनों साइड को सुनना बहुत ज़रूरी है. What if he also has something to say so that the trial is fair and equal? Right? That is the concept, that lawyers are presenting both of the sides. They are not lying. They are presenting the both of the sides. ठीक है? So let's get started of why choose law. So the first thing is, ये एक quote है. आप ये quote आराम से पढ़ें. What is it saying? It's saying, how fortunate I was to be alive and a lawyer when for the first time in United Nations history it became possible to urge successfully before legislatures and courts the equal citizenship stature of women and men as a fundamental constitution principle. Now imagine, हम हमेशा we always strive to be important in each other's life. Now imagine you being important in the history. कैसा लगेगा आपको जब आप हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, जब आप ये देखेंगे कि आपने एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर कराया है. जैसे नवतेज सिंह जौहर वाला, आपने एक पूरा आर्टिकल जो जब से लिखा गया था, पास्ट 75 to 80 years that it was written, it was still followed. आपने संघर्ष किया और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराया. यू मेड सो मेनी पीपल अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड. राइट? हम सबको पता था LGBTQ कम्युनिटी स्टैंड करती है, दे हैव देयर राइट्स, बट वी डिड इवन केयर अबाउट द राइट्स दैट वी हैव एंड दे डोंट हैव. राइट? सो किसी ने लीगली एक्टिव होके दे डिलीवर्ड अ लैंडमार्क जजमेंट. राइट? बहुत सारे लोगों को इमेजिन कमिंग बैक लाइक 200 years जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, जब सब लोग वियना कन्वेंशन में लड़ रहे थे, इक्वल वोटिंग राइट्स, वुमेन को भी एजुकेशनल राइट्स मिलना चाहिए, वुमेन वोट क्यों नहीं कर सकती है. तो उस टाइम पे अगर आप लॉयर है, यू एडवोकेटिंग समथिंग, राइट? यू एडवोकेटिंग व्हाट यू थिंक इज राइट. आप राइट्स एंड ड्यूटीज बता रहे हैं किसी को, उसके अधिकार बता रहे हैं. तो व्हाई नॉट बिकम अ लॉयर? व्हाई नॉट चूज लॉ? ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज पैशन फॉर जस्टिस. एवरीवन हु इज लर्निंग लॉ always have one thing in mind, passion for justice. हम क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं. किसी के साथ अगर भेदभाव हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, उसे अपनी राइट्स नहीं मिल रही हैं, we want passion. We have a passion for justice. हम चाहते हैं कि दुनिया एक perfect place बने where rights and duties are cohabiting along with people. पीसफुल एनवायरनमेंट. एंड फॉर पीपल हु आर एंटी सोशल एलिमेंट्स, हम उनको अपना एक तरीके से रिफॉर्म करें. राइट? दैट इज वाई वी हैव पनिशमेंट्स एज वेल. सो फर्स्ट थिंग ऑलवेज शुड बी इन माइंड इज पैशन फॉर जस्टिस. देन इज डाइवर्स करियर ऑप्शन.
मुझे कोई भी ऐसा एज आई माइट बी बायस्ड ऑल्सो बिकॉज आई एम अ लॉयर माई सेल्फ, सो कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपको प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं, इतना नहीं मिलेगा जितना आपको लॉ पढ़ के मिलेगा. सो यू कुड बी डूइंग CA एज वेल, यू कुड बी गोइंग टू UPSC बिकॉज यू विल बी देयर बी अ लॉट ऑफ लॉज दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न. यू कुड बी डूइंग योर लीगल फर्म में आप बना सकते हैं, आप खुद एडवोकेट होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपना एडवाइस भी दे सकते हैं, लीगल एडवाइस दे सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं, आप कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, या फिर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं. यू कैन हेल्प किड्स इन प्रिपरेशन, आप RGS दे सकते हैं, आप जुडिशरी में जा सकते हैं. देयर लाइक अ लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन डू. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट गोइंग विद कंटेंट राइटिंग. सो लॉ पढ़ना is such a vibrant and such a vast career options होता है इसमें, because it's ever growing, right? You cannot survive जैसे आप डॉक्टर के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, इंजीनियर के बिना नहीं कर सकते, हम लॉयर के बिना भी नहीं कर सकते. ऑलवेज नीड दैट. प्लस जब आप लॉ पढ़ते हैं, यू हैव सो मेनी स्किल्स दैट आर डेवलप्ड. आपकी कॉग्निटिव स्किल्स इतनी अच्छी डेवलप हो जाती है, आपकी डिबेटिंग स्किल्स इतनी अच्छी डेवलप हो जाती है, आपकी रीजनिंग स्किल्स इतनी अच्छी डेवलप हो जाती है, दैट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यू ऑलवेज रेडी, right? Because you always are thinking a step ahead, because that's what you'll be teaching, that's what you'll be taught in your law schools. क्योंकि आपको हमेशा केस में एक तरीके से आगे रहना होता है कि अगर मैंने ये किया तो सामने वाला इंसान मेरे पे ये कर सकता है, so I need to do that. So always step ahead of everyone. That is another good thing. Then is financial securities. So हमने हमेशा देखा है that when you start anything, it takes a lot of time, but लॉ करियर में आप 1 या 2 या 3 सालों बाद में अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है, then you start earning, and then you start earning a lot. Later in your life, when everybody wants to relax, you could still be working and earning, right? Who wants to retire from such a great profession? So I have seen lawyers who are charging at least 4 lakh per minute, 4 lakhs per hours, and also charging very petty fees, or you can say they're also working with NGOs. So financial security भी आपका एक aspect होता है, not just depending on the solicitors that are working for government, या फिर आप standing counsel या कोई भी, right? Even if you're working in law firms, even if you're teaching, lawyer is a profession, राइट? प्रोफेशनल स्टडीज़ है, सो यूर प्रोफेशनल ऑलरेडी, तो आपका वो बहुत अच्छा एस्पेक्ट होता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाता है. देन इज प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस. इफ यू रिमेंबर प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस, सो दिस इज अ वेरी ओल्ड सेइंग दैट माई ग्रैंडफादर ऑलवेज यूज्ड टू से, दैट व्हेनेवर देयर इज अ ब्लैक एंड वाइट person who's wearing a black and white going around, everybody looks twice कि अच्छा ये वकील है, अच्छा ये वकील है. सो प्रेस्टीज एंड ऑनर हर जगह होता है. बिकॉज क्यों होगा? आपके एक तो मन में होगा, बिकॉज यू हैव रेड ऑल द लॉज. कोई भी आपसे ऐसे चीटिंग नहीं कर सकता है, गलती से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, राइट? यू नो योर राइट्स एंड योर ड्यूटीज़. Then whenever you're going around, because you're so confident about your rights and duties, you're so confident about each and every aspect that you know, आपको जो भी लॉ स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, nobody is going to be you like untouchable, ठीक है? So another way कि आपको क्यों होना चाहिए, like I remember कि कुछ हाई कोर्ट जजेस, कुछ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स जब भी एंटर करते हैं, वे ऑलवेज सपोज टू बो डाउन टू द कोर्ट. तो कभी कभी दी होल कोर्ट यूज टू स्टैंड फॉर देम इन रिस्पेक्ट. सो ये सारी चीज़ें होती है, राइट? सो बिकम अ गुड लॉयर. आप अगर बहुत मेहनत करते हैं तो ये सारा एक बेनिफिट्स है इसके साथ में. सो आई होप you guys, for whoever has already decided to do law, you're going to become a lawyer, I hope. If not, then whatever is your career, I hope it's very good for you. So अगर आपने law choose किया है, क्यों choose किया है ये आप comment down करेंगे. And for everybody around who is influenced, now tag along and let's start our law career.